Now we discuss the ancient Indian education systems. यहाँ पर वो हिंदी में कोटेशन है, सब देख देख लीजिएगा। फिर है क्या चीज़, लर्निंग इन इंडिया थ्रू द एजेस had been prized and pursued not for its own sake, if we may so put it, but for the sake, and as a part of religion, it was sought as the means of the self realization, as the means to the highest end of life, मुक्ति और इमेंसिपेशन। ये डॉक्टर आर के मुखर्जी का कोटेशन है। फिर है क्या कि वैदिक एजुकेशन को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। Vedic period education was considered to be the first education system in India. This education was based on the dedication of humanity, truth, love, sacrifice, where main objective was the all-round development of the children. Continuing the pursuit of truth and striving for salvation, the main purpose of this period was to have unlimited reverence for the Supreme God. Formal education in the Vedic period began after the Upanayan rites. The rite has held at the age of the five. All field of Vidya or knowledge were thus divided into two broad streams, Pravidya and Apravidya. Pravidya means higher knowledge, the spiritual wisdom, and Apravidya means a lower knowledge, the secular science. Fundamental of ancient Indian education. The Indian sages devoted themselves to the study of a super sensible world and the spiritual power and molded their life accordingly. नॉलेज रिलेटेड टू लाइफ, तो वहाँ पे नॉलेज रिलेटेड टू लाइफ भी दिया जाता था। ड्यूरिंग एन एंशियंट टाइम्स इन इंडिया द पीपल अवे फ्रॉम द हॉन्ट्स ऑफ दीन एंड डिस्ट्रैक्शन of the material world. Amidst beautiful natural surrounding, sitting at the feet of his teachers would comprehend all the intricate problem of life through listening and meditation. Close association between teachers and student resulted in all-round development. The resident of the people at the house of the teachers, accompanied by a sense of devoted services, had been a unique tradition in ancient India. This was regarded as indispensable for the fullest development of his personality, because the teacher was supposed to symbolize all the good ideals, traditions, and the code of behavior of the society from where the people hailed. Development in social work, फिर vocational training. The students were given a training in occupation of animal husbandry, agriculture, and dairy farming, etc. By tending his teachers, cows, and serving him in a diverse way. Important place of teacher. Teacher Guru enjoyed a predominant place not only in his Gurukul but also in the entire society. He was regarded as a great guide for all. The pupils were free to discuss point freely with the Guru. Duties of student. Student had to beg alms for the support of the Guru and himself. This tradition was carried out by all sources of education. The ancient system of education was the education of the Vedas, Varnas, Upanishad and Dharam Sutra. Four Ved, तो ऋग्वेद में 1028 हाइमन्स, यजुर्वेद मेथड ऑफ यज्ञ
Samved, musical form of the rituals, and Atharved, mystics, herbs, miracles, and Ayurved. Six Vedangs, Shiksha, Kalp, Jyoti, Nirukta, व्याकरण एंड छंद। तो ये सब उसमें पढ़ाया जाता था। सोर्स ऑफ लर्निंग, source of learning were drawn from various disciplines such as इतिहास, अन्विक्षिकी मीमांसा, शिल्प शास्त्र जिसको पॉलिटी बोलते हैं, वर्ता एग्रीकल्चर, ट्रेड कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनु विद्या आर्करी। फिजिकल एजुकेशन में था क्रीडा गेम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, योगा एंड योग दर्शन, ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो ये सब पढ़ाई उस समय होता था। अब क्या मेथड ऑफ टीचिंग, कि कैसा मेरा मेथड ऑफ टीचिंग उस समय होता था। द मेथड ऑफ टीचिंग वाज बिंग प्रैक्टिस्ड ओरल और चिंतन। ओरल में स्टूडेंट वेयर टू मेमोराइज द मंत्रास। तो ओरली वो लोग मंत्रास को कैसे करते थे, मेमोराइज करते थे। फिर क्या होता था, चिंतन मीन्स थिंकिंग। एजुकेशन वाज रिड्यूस टू द थ्री सिंपल प्रोसेस ऑफ श्रवणा, मनन एंड मिध्यासन। तो श्रवणा का मतलब है क्या, कि लिसनिंग टू द ट्रूथ एज दे फेल फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टीचर। और मनन का मतलब है क्या, कि द पीपल हैज़ टू थिंक आउट फॉर हिमसेल्फ द मीनिंग ऑफ द लेसन। एंड निध्यासन का मीन्स है कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन बाय द पीपल ऑफ द ट्रूथ डेट इज डाउट। तो ये था वैदिक एजुकेशन के बारे में। अब वैदिक एजुकेशन आप लोगों का क्वेश्चन अगर आएगा तो वैदिक एजुकेशन के बाद आएगा तक्षशिला आ सकता है या नालंदा आ सकता है। तो ये है तक्षशिला, आप लोग इसे देख ले और आप लोग देखिए थोड़ा सा, इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तक्षशिला का एक्चुअली लिख देंगे क्या चाहिए, जियोग्राफिकल रीजन वहाँ पे क्या है और वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे होता था, और जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में वो साइट मतलब शामिल हुआ है 1980 में, तो ये सभी लिख देना है। और ये उसका थोड़ा सा मैपिंग कर देंगे। और फिर थोड़ा ये भी बता देंगे कि वहाँ पे कौन कौन जो पढ़े हैं, मतलब जो ग्रेट स्कॉलर वहाँ पे कौन कौन वहाँ पे पढ़े थे। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कर ले इसे। एक्चुअली मेरा एक पिछले साल भी मैं अपलोड किया था, लेकिन वो चैनल मेरा डिलीट हो चुका है था, इसलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर ले। अब यहाँ पे वही नालंदा, तो यहाँ पे नालंदा का थोड़ा देख लेंगे, उसका मतलब जियोग्राफिकल रीजन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वहाँ पे क्या क्या पढ़ाई होता था और कौन कौन से स्कॉलर वहाँ से निकले थे। तो ये सब इसमें लिखा हुआ होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले और ये सब आंसर आप लोग बना ले। एक बनाने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी अगर देखेंगे तो आराम से एग्ज़ाम में लिख देंगे और नंबर अच्छा आ जाएगा। ये वहाँ पे लाइब्रेरी था, 3 लाइब्रेरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, रत रत्ना सागर, फिर क्या है रत्नोदधि और रत्ना वंजका। तो ये सब मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर नालंदा के बारे में अगर लिखेंगे तो ये सब इम्पोर्टेंट लिखेंगे। ये सब हिस्टोरिकल फिगर्स की क्या कौन कौन वहाँ से पढ़े थे, तो आर्यभट्ट, आर्यदेव, स्टूडेंट ऑफ नागार्जुन, ये सब है। और ये सब मतलब इतना आपको नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी मतलब इसमें से मैक्सिमम चीज़ को आप लोगों को लिखना है वहाँ पे एग्ज़ाम में। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो with your friends. Thank you so much.